کے خصوصاً ہم آئے تھے تعزیت کرنے کے لیے، اس لیے مجھے موقع نہیں ملا تھا. میں کورونا میں کوارنٹین تھا، تو اسٹوڈنٹ تعزیت کے لیے آئے تھے. مگر اس کے بعد اوبیسلی جو 13th کا جلسہ ہونے والا ہے لاہور میں، اور جس کی تیاری اب سب کے سامنے ہے، اور جو حکومت کا پریشانی بھی اب سب کے سامنے ہے، انشاءاللہ تعالی 13 تاریخ کو لاہور میں تاریخی جلسہ ہوگا. اور پی ڈی ایم کا جو پیغام گجرانوالہ، کراچی، کوئٹہ اور پشاور نے ریفرینڈم اسلام آباد کو سنایا تھا، انشاءاللہ تعالی ہمارا ایمان ہے کہ لاہور اسی انداز میں اور اسی آواز کے ساتھ پیغام بھیجے گا اسلام آباد کو کہ ہمارا کٹ پتلی وزیر اعظم اکیلا اسلام آباد میں کھڑا ہے، اور پاکستان کی عوام جمہوریت کے ساتھ ہے، جمہوری جماعتوں کے ساتھ ہے. اور اب اس حکومت کو سوچنا پڑے گا، اور اس حکومت کو سہولت کاروں کو سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ کتنے دیر تک عوام کی جو امیدیں ہیں، عوام کا جو مطالبات ہے، وہ کب تک ان کے سامنے ایک دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا جو پہلا فیز ہے وہ بڑا کامیابی سے اور بڑی تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 13th کے بعد ہم اپنا دوسرا فیز میں داخل ہو جائیں گے، اور تب تک آپ سب کو نظر آئے گا کہ یہ حکومت خود بھاگنے والا ہے. یہ نا اپنی تھوڑا غلط جگہ لگایا ہے، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے. سوری پلیز. تھینک یو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ تشریف لائے اور میری دادی اور میاں صاحب کی والدہ کی وفات کے لیے افسوس کیا. اس کے بعد ہم نے کھانا بھی اکٹھے کھایا، اور جیسے بلاول نے بتایا کہ پرسوں جو انشاءاللہ تعالیٰ پی ڈی ایم کا جلسہ ہے مینار پاکستان میں لاہور میں، اس کے بارے میں بھی بات چیت ہوئی، اور ہمارا جو اگلا پلان ہے اس کے بارے میں بھی بات چیت ہوئی، اور پی ڈی ایم کا جو لارجر ایجنڈا ہے اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی. تو کافی سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور یہ میٹنگز ہماری چلتی رہیں گی اور یہ آگے بڑھتی رہیں گی. پلان بھی بڑھتا رہے گا، حکومت کی گھبراہٹ بھی بڑھتی رہے گی، حکومت کی پریشانی بھی بڑھتی رہے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن اب دور نہیں ہے کہ حکومت اب کو انشاءاللہ تعالیٰ پی ڈی ایم گھر بیچ کے دم لے گی. مریم ابھی عام حکومت کو گھر بیچ کے دم لیں گے، لیکن حکومت کو بلکہ دونوں سے میرا کویشچن ہے کہ حکومت ایک طرف تو کہتی ہے ہم آپ کو کنٹینرز بھی دیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن اب آج صورتحال گراؤنڈ ریئلٹیز میں یہ ہے کہ وہاں پر تارے لگے ہوئے ہیں، نہ کسی قسم کی ٹرانسپورٹیشن اس طرف ہو سکتی ہے، نہ ہی لوگوں کو جانے دیا جا رہا ہے. تو کس طرح آپ لوگ جلسہ کریں گے؟ کیا پلان ہے؟ کیا تصادم ہوگا یا وہاں پر لوگ کس طرح اندر جائیں گے؟ دیکھو، میرا تو یہ خیال ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں کنٹینر دوں گا، تو ان کا شاید یہ خیال تھا کہ میں سڑک پہ کنٹینر لگاؤں گا اور ان کا راستہ روکوں گا. ایکچولی بات یہ ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ نواز شریف سے اس کا مقابلہ ہے یا پی ڈی ایم سے اس کا مقابلہ ہے، ہمیں تو اب یہ سمجھ آئی ہے کہ ڈی جے بٹ صاحب سے ان کا مقابلہ ہے، یا پھر کرسیاں اور ٹینٹ سروسز والوں سے ان کا مقابلہ ہے، یا پھر جہاں پر میں نے کل ریلی کے دوران کھانا کھایا تھا اس بٹ کڑاہی جو ہے اس کے اونر سے ان کا مقابلہ ہے. مجھے تو یہ ابھی سمجھ نہیں آئی. لیکن دیکھیں، ملتان میں بھی انہوں نے یہ کیا تھا، اسٹیڈیم کو سیل کر دیا، اسٹیڈیم میں پانی چھوڑ دیا، اور اس کے بعد اس کو آخر وقت تک اسٹیڈیم کو جو ہے وہ بلاک رکھا. لیکن کیا ملتان میں جلسہ نہیں ہوا؟ اسٹیڈیم میں اگر جلسہ ہوتا تو شاید اتنا کامیاب جلسہ نہ ہوتا. ملتان کے لوگوں کو غصہ آیا اور وہ باہر نکلے، اور انہوں نے بغیر کسی سٹیج کے، بغیر کسی لائٹنگ کے، بغیر کسی ساؤنڈ سسٹم کے، انہوں نے بڑی کامیابی سے ماشاءاللہ عوام کی شمولیت کے ساتھ ملتان کا جلسہ ہوا. تو ان کے جو ہوائیاں ان کی اڑی ہوئی ہیں نا، وہ ہم تو خون خرابہ یا کوئی بھی کسی قسم کی بھی ہماری پرامن تحریک ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے راستے اور عوام کے راستے سے ہٹ جاؤ، اور اگر آپ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرو گے تو آپ اپنی جو فال ہے اور اپنا جو گھر جانا ہے آپ اس کو اپنے اوپر جلدی کر لو گے. ایک سوال کا جواب دے سکتا ہوں. کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی استعفوں کے حوالے سے ہی چاہت کا شکار ہے، حالانکہ آپ واضح کر چکے ہیں کہ استعفے جو بھی پی ڈی ایم کی پالیسی ہوگی اس پر عمل درآمد ہے، اس کے باوجود ایسی خبریں لائی جا رہی ہیں. کیا کہیں گے؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا میڈیا دوستوں میں اور جو بھی آپ کو یہ خبریں فیڈ کرتے ہیں ان کا ایک
ख़ास मोहब्बत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और वो PDM के बनने के वक्त से लेके आज तक एक ख्वाब देख रहा है कि देख रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से वो PDM में कोई दरार पैदा हो, लेकिन वो हर मौके पे नाकाम रही। मुझे याद है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में जब मैं उन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को खुद जगह जगह पहुंचना, तो हमारे पीछे यहाँ पाकिस्तान में खबरें चल रहे थे कि गिलगित के इलेक्शंस में हम PDM को छोड़ेंगे, और वो नहीं हुआ। फिर इस इस्तीफे के बाद पे भी काफ़ी क़ुव्वतों और हमारे कुछ दोस्तों ने ऐसे बातें की हैं ताकि PDM में दरार पैदा हो, लेकिन आपके सामने हकीकत है कि PDM ने फ़ैसला कर लिया है कि 31 दिसंबर तक सारे पार्टीज़ की क़यादत के पास इस्तीफ़ा जमा होंगे, और इस फैसले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है। मेरे पास धड़ाधड़ एक के बाद एक इस्तीफे पहुंच रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला उस डेट से पहले मेरे जेब में सारे के सारे इस्तीफे। और जो ये ख्वाब देख रहे हैं, कि हम में से कोई जमात इस मुतालबा से पीछे हट सकते हैं कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में अमल दखल बंद करो, कि हमारा इस्टेब्लिशमेंट का जिस तरीके से वो जाली अंदाज से ज़बरदस्ती इस हुकूमत को खड़ा कर रही है, उनको ये काम ख़त्म करना पड़ेगा। वो जिस तरीके से हमारा इस्टेब्लिशमेंट आपका आवाज़ गूंजने की कोशिश कर रहे हैं, ये काम ख़त्म होना पड़ेगा। जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान में हमारे शहरी लापता हो रहे हैं, ये काम ख़त्म होना पड़ेगा, और तब तक PDM का कोई जमात पीछे। अच्छा, मेरा आप दोनों से सवाल है कि एक तरफ आपका बयानिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, तमाम जमातों का, एक तरफ इमरान खान का बयानिया था, स्टेटमेंट थी कि जब मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे। दूसरा, एक कॉमन मैन भी माजी में आप भी कहते रहे हैं मोदी का जो यार है वो गद्दार है, और नून लीग के घराने से आवाज़ आती थी कि चोर डाकू लाड़काना की सड़कों पर इनको घसीटेंगे। आज ये सारे इकट्ठे हो गए, क्या इमरान खान का बयानिया भी नहीं ठीक हो रहा? देखो, जहाँ तक आपस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का जो तारीख है वो आपका सबके सामने है, लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, रेकन्सिलिएशन और इस मुल्क में जो भी तरक्की हुआ है जमहूरी, सियासी, मुआशी, वो तो हमारा साथ मिलकर चलना की वजह से हुए हैं। और जहाँ तक इमरान खान साहब के बयानिया है, वो तो हर दिन चेंज हो जाता है। पहले वो तो हमें धमकी दे रहा था कि आप हमें जानते नहीं हैं, मैं आपको देख लूँगा। अब वो बेचारा कह रहा है कि मैं तो डायलॉग के लिए भी तैयार हूँ, कुछ करने के लिए भी तैयार हूँ, अब आ जाए हमसे ज़रा बात करें। तो ऐसा सियासत में नहीं चलता है। मैं समझता हूँ कि इस कौम ने अपने फैसला कर लिया है, पाकिस्तान के अवाम ने फैसला कर लिया है। एक आदमी रहता है, इमरान खान साहब रहता है, जो कौम का फैसला नहीं मान रहा, जो अवाम का फैसला नहीं मान रहा, अवाम का फैसला नहीं मान रहा। और PDM के जमातें मिल के इमरान खान को, इमरान खान के सहूलतकारों को मनाएंगे कि उनको अवाम का हुक्म मानना पड़ेगा। उल्टा नहीं चलता है, अवाम किसी और का हुक्म नहीं मानता। अच्छा, बिलावल जी बताइएगा, शेर रशीद साहब का कलमदान जो है वो चेंज कर दिया गया है। लोग राब्ते कर रहे हैं, वो किस तरह के राब्ते हैं? क्या वो पॉलिटिकल लोग हैं या नॉन पॉलिटिकल लोग हैं? कौन है जो राब्ते कर रहे हैं दोनों जमातों से? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि इनके सिटिंग मिनिस्टर्स राब्ते कर रहे हैं, लेकिन मैं ना उन राब्तों को कोई अहमियत देती हूँ, ना उन राब्तों का मैंने जवाब देना मुनासिब समझा है, क्योंकि जिस किस्म के ये ज़हनी पस्ती का शिकार ये इनके मिनिस्टर्स हैं, इस किस्म के लोग हैं, हुकूमती अहलकार हैं, मैं ना उनकी बात सुनने में इंटरेस्टेड हूँ, ना मेरा ख्याल है कि उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन जो असल बात है ना इस सारे पैगामात के पीछे, वो उसको नहीं भूलना चाहिए कि एक इंसान 3 साल खुदाई लहजे में बार बार ये कहता रहा कि मैं NRO नहीं दूंगा। उससे आप पूछते थे रोटी के तरह, वो कहता था मैं NRO नहीं दूंगा। आप उससे पूछते थे कि चीनी चोरी हो गई, आटा चोरी हो गया, पेट्रोल डीजल गैस महंगी हो गई, वो कहता था मैं NRO नहीं दूंगा। अब वही इंसान पिछले 3 दिन से और उसके सारे हुकूमती अहलकार हमारे मुख्तलिफ सीनियर क़यादत से राब्ते कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आके बैठ के बात करें, ये मामला पार्लियामेंट में हल होना चाहिए, आप इस्तीफ़े ना दें, आप लॉन्ग मार्च ना करें। तो ये तो इबरत का मकाम है उस शख्स के लिए जो इस तरह की खुदाई लहजे में बात किया करता था। आज वो PDM से NRO मांग रहा है। तो मैं ये कह देना चाहती हूँ कि ना तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को हम कुछ जानते हैं,
ना तुम्हें इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम या PDM NRO देगा। बिलावल से सिर्फ मुज़ाकरात के ऊपर इसी को कंटिन्यूटी में क्या आपकी जमात भी इस मौक़िफ़ के साथ है कि अब मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म हो गया? बिल्कुल, हम समझते हैं कि अच्छा वो इस्टेब्लिशमेंट हो या ये कठपुतली हुकूमत हो, बात करने के वक्त बहुत पहले चला गया था और अब जो भी वो बातें करते हैं या ये रेकन्सिलिएटरी आवाज़ें देने की कोशिश कर रही हैं, ये सिर्फ उनकी खौफ की वजह से। वो बुज़दिल लोग हैं, जानते हैं कि अवाम का सामना नहीं कर सकते हैं, और जिस तादाद में उनके रिपोर्ट्स आ रहे होंगे, उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी आ रहे होंगे कि जिस तादाद में पाकिस्तान के अवाम तैयारी पकड़ रहे हैं इस्लामाबाद पहुंचने के लिए, मेरा ख्याल में कोई लॉन्ग मार्च पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा और इतना कामयाब नहीं होगा जितना PDM का 11 जमातों का लॉन्ग मार्च। अच्छा बिलावल साहब और ये तो बात करने के वक्त नहीं है, ये वक्त है कि वो अंदाज़ा करे, सिचुएशन का अंदाज़ा करे और खुद ब खुद मुस्ताफ़ी हो जाए, खुद ब खुद घर चले जाए और ये मसला हल करे। एक बात मैं और ऐड करना चाहती हूँ, और वो ये है कि मैं तो पहले दिन से इसको जाली हुकूमत समझती हूँ, वोट चोर हुकूमत समझती हूँ। ये वोट पे डाका डाल के आए हैं, ना इनसे पहले दिन कोई बात होनी चाहिए थी, ना दरमियान में होनी चाहिए थी, और ना आज होनी चाहिए। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के अवाम के जानने के लिए कि ये जो अभी इन्होंने सवाल किया कि ये कहते थे कि मैं क्योंकि इनको जब पकड़ता हूँ तो ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाते हैं। भाई हम आपकी तरह बुज़दिल लोग नहीं हैं, हम वो सारा कुछ काट के आए हैं, वो कैदें भी काट के आए हैं, वो मुकदमात भी भुगत के आए हैं, वो सज़ाएं भी भुगत के आए हैं। तो ये बात करने की आपकी हैसियत नहीं है। और आज जब आप हर महाज पर फेल हो गए हैं, हर फ्रंट पर फेल हो गए हैं, और आपको अपनी हुकूमत जाती नज़र आ रही है, तो आज आपको पार्लियामेंट याद आ गई है, आज आपको बातचीत याद आ गई है, और आज आपको NRO याद आ गया। ये NRO अब नहीं मिलेगा। अच्छा बिलावल साहब ये बताइएगा, बिलावल साहब जो तसादम की सूरत पैदा हुई है, ये तो नहीं हो सकता कि कोई तीसरी फरीक जो है इससे फायदा उठाए। अच्छा मैं समझता हूँ कि PDM में जो भी जमातें हैं वो हम सब जमहूरी जमातें हैं, और हरगिज़ वो सूरत हाल नहीं पैदा करना चाहेंगे जिससे कोई तीसरी फोर्स फ़ायदा उठाए। अच्छा, तो हम मेरा सवाल एक्सपीरियंस लोग हैं, हमारे जमात में एक्सपीरियंस है, और हम सोच समझ के अपने फैसले करेंगे, सोच समझ के अपने खाद्स खेलेंगे, और ऐसे ही खेलेंगे कैसे बहरान पैदा अच्छा ना हो। बिलावल साहब, शहीद रशीद साहब का कलमदान तब्दील कर दिया गया है, उन्हें वजीर दाखिला बना दिया गया है। उन्होंने ये कहा है कि मीनार पाकिस्तान का जलसा इमरान खान की उठान साबित हुआ था और PDM की ठुस साबित होगा, और जलसे की इन्हें इजाज़त होगी, लेकिन ये इमरान खान जितने लोग नहीं ला सकेंगे। क्या कहेंगे उनके कलमदान की तब्दीली पर और उनके इस दावे पर? मैं प्रेफर करता हूँ जब राना सनाउल्लाह साहब जो है वो फिर का शैतान का जवाब दे। आपके हवाले से बार-बार कहा जाता है कि कौमी असम्बली से तो आप इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट से आप इस्तीफा नहीं देंगे, क्या कहेंगे इस पर आप? हम सारी जमातों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और जो भी PDM में शरीक जमातें हैं, ये फैसला कर लिया है कि हमने अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मशवरा करना है। तो मैं इसी केस को अपना CC के पास लेके जा रहा हूँ कि हम अपना सिंध हुकूमत का कुर्बानी दें, हम अपना नेशनल असम्बली सीटें की कुर्बानी दें, अगर इसका ये मतलब हो कि हम इस हुकूमत को और उनको सहूलतकारों को घर भेज सकते हैं। ये सहूलतकार कौन है ये भी कभी बताएं। मैंने आपको इतने खूबसूरत लफ्ज दिए हैं जिससे आप उनको पुकार सके। आप उनको सेलेक्टिव भी कह सकते हैं, आप उनको एस्टैब्लिशमेंट भी कह सकते हैं। अभी तक मैंने उनका नाम इसलिए नहीं लिया कि हम भी उनका मान रखें। बिलावल साहब, आसफा साहिबा के हवाले से एक सवाल का जवाब दे दें। आसफा भुट्टो साहिबा के हवाले से सवाल है कि जो उन्होंने मुल्तान के जलसे में आपकी कमी को पूरा किया, प्रेजेंट शो की, और पीपल्स पार्टी ये देख रही है कि उनमें मोहतरमा की झलक दिखाई दी है, तो कल को कोई ऐसा होता है कि आप उन्हें स्पेस देंगे पीपल्स पार्टी में आगे आने की और थोड़ा सा स्टेप डाउन कर देंगे? आसफा बीबी ने जिस तरीके से मुल्तान का मेला लूट लिया, वो जो हम पहले बात कर रहे थे ना, ये सहूलतकारों का, एस्टैब्लिशमेंट का और इमरान खान के, उनके लिए मेरा एक धमकी है कि आप हमें जो हमारे साथ जो भी करना है आप कर तो ले, लेकिन हमारे पीछे आसफा बीबी है, और जो मदद, जो ताकत किसी एक भाई को अपनी बहन से मिलती है,
किसी और वो नहीं देख सकता। आपको झटका क्यों लगा था जब मियां साहब ने गुजरांवाला के जलसे में उन कुव्वतों का नाम लिया था? झटका क्यों लगा? वो एक जो जर्नलिस्ट जो हमसे सवाल कर रहे थे वो शायद कोई अल्फाज हमारे प्लेस्ड इन माय माउथ, हम अंग्रेजी में बात कर रहे थे और सरप्राइज का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया और मेरा ख्याल में मेरे लिए भी सरप्राइज था, आपके लिए भी सरप्राइज था, हम सब के लिए सरप्राइज था। अब तो कोई सरप्राइज नहीं रहा, हम तो आबादी होती है।